Very good morning to all of you. Yes, as you know that we are studying English with the help of this video. So in last class we have studied two small topic, and the name of the topic was the donkey, and I had a little pony. Oh, yes, two topic we have studied of unit 6, and in this video we are going to study a new topic, and the name of this topic is the milkman's cow. The milkman's cow. In this video, this is a very interesting passage. You can say lesson. It is very interesting lesson, and in this lesson there is a very interesting story. There is a small boy who is doing an extraordinary work which cannot be done by some elder people. कहने का मतलब ये है कि एक ये कहानी है। इस कहानी में एक छोटे बच्चे की कहानी है, जो एक बच्चा वह काम करता है जो बड़े लोग नहीं कर पाते। ठीक, सो in this passage, in this lesson we are going to study the story, and before going to start I would like to request you, please open your book. अपनी किताब खोल लेंगे और किताब खोल करके लाइन बाय लाइन मेरे सामने पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर एक पार्ट जो है कि टॉपिक का मैंने लिखा है, ताकि यहाँ से आपको बोलने में, बताने में, समझाने में मुझे आसानी हो, और आप अपनी बुक खोल लेंगे और जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे वैसे आप भी रिसाइट करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, ताकि जो भी डिफिकल्ट वर्ड है उनके प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, open your book, and I think this is the page number, which page it is? 97. It is a page number 97. So you can open your page number 97 in your book. Okay. Now, okay, I think you have opened this, opened your book. So now we are going to recite this lesson with line by line. The milkman's cow. Topic, name of the topic is milkman's cow. दूध वाले की गाय। milkman's मतलब दूध वाला, जो दूध देता है, दूध ला करके घर घर पहुंचाता है। So that is milkman's. milkman's की एक गाय है, उसी गाय से रिलेटेड काउ है, उसी काउ से रिलेटेड यह जो है कि स्टोरी है। तो अब चलिए पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। The milkman's cow was in a bad mood. Bad mood मतलब जब हम अच्छा महसूस नहीं करते तो हमें कहते हैं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है। So that is the bad mood. वही bad mood होता है कि हमें जब कुछ अच्छा ना लगे। So he is saying the cow is in bad mood. Okay. It sat in the middle of the road and refused to move. Again we are going to read this. The milkman's cow was in a bad mood. It sat in the middle of the road and refused to move. So that is the first two line. इसके बारे में देखते हैं क्या कह रहा है कि the milkman's cow, जो milkman's की गाय है, in a bad mood, वह अच्छे मूड में नहीं है, वो मतलब कि खुश नहीं है। So what happened? It sat in the middle of the road. जब ऐसा होता है तो क्या हुआ कि जो गाय है it sat, वह बैठ गई। sat, यहाँ sat का मतलब है sit, यहाँ sat का मतलब है sit, to sit, बैठ गई in the middle of the road. middle of the road, रास्ते के बीच में। Suppose that कोई इस तरह से रास्ता है, ओके, काऊ आकर के यहीं पर जो है कि वो बैठ गई इस तरीके से। सो ओके, ही इज सेइंग इट सैट इन द मिडिल ऑफ द रोड, रास्ते के बीच में आकर के बैठ गई। एंड रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड का मतलब मना कर देना, और इसे यहां कह सकते हैं डिनाई, टू डिनाई। I will send you difficult word. So, okay, I will send you the difficult word. If I write here, that will become very odd.
अगर यहाँ लिख दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा. सो आई विल सेंड यू द डिफिकल्ट वर्ड. सो द रोड एंड रिफ्यूज टू मूव, और चलने से, मूव करने से क्या कर दिया उसने, मना कर दिया. कहता है कि मिल्कमैन्स काउ इज इन अ बैड मूड. मिल्कमैन की जो काउ है वो आज बैड मूड में है, अच्छे मूड में नहीं है. वह सैट इन द मिडिल ऑफ द रोड, रास्ते के बीच में आकर के जैसे यहाँ पर है बैठ जाती है. एंड रिफ्यूज टू मूव, और चलने से मना कर देती है, मूव करने से मना कर देती है. नाउ सेकंड स्टैंजा. द मिल्कमैन begged the cow to get up. The milkman begged the cow to get up. The children are waiting for their milk to help them grow strong. Please get up, he pleaded. He pleaded. Next line, he pulled and tugged and prayed. Three words are here. Pulled, tugged and prayed. He is saying he pulled and tugged and prayed. Now, इसका मतलब समझते हैं अब क्या कह रहा है. The milkman begged. Begged माने होता है प्रार्थना करना, विनती करना. Begged मतलब विनती करना. वो कहता है कि द मिल्कमैन बेग्ड द काउ, काउ से जो है कि विनती करती है, रिक्वेस्ट करना, यू कैन से. द मिल्कमैन रिक्वेस्टेड द काउ, काउ से जो है कि रिक्वेस्ट करता है टू गेट अप, कि उठ जाइए. यानी जब गाय बैठ जाती है, उठती नहीं है, तो मिल्कमैन क्या करता है कि रिक्वेस्ट करता है गाय से टू गेट अप, उठ जाने के लिए. द चिल्ड्रेन आर वेटिंग फॉर देयर मिल्क. अब मिल्कमैन कहता है कि क्यों उठना है, उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि जो चिल्ड्रेन हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आर वेटिंग फॉर देयर मिल्क, वह जो है कि अपने मिल्क के लिए, अपने दूध के लिए, मिल्क के लिए, दे आर वेटिंग, वे इंतजार कर रहे हैं. यानी इट मीन्स चिल्ड्रेन्स आर वेटिंग फॉर देयर मिल्क, अपने मिल्क के लिए बच्चे इंतजार कर रहे हैं. टू हेल्प देम ग्रोन स्ट्रॉन्ग, जो उन्हें बड़ा होने में, ग्रोन माने, ग्रोन का मतलब यहाँ पर, इस ग्रोन का मतलब बड़ा होने में और स्ट्रॉन्ग, मजबूत होने में मदद करती है. यानी उस मिल्क का बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जो मिल्क उन बच्चों को बड़ा होने और स्ट्रॉन्ग होने में जो है कि हेल्प करता है, यानी मदद करता है. दैट इज हेल्प. ग्रोन मतलब बड़ा होना, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होना, ताकतवर होना. सो चिल्ड्रंस आर वेटिंग, बच्चे उस मिल्क का, तुम्हारी मिल्क का इंतजार कर रहे हैं, काऊ के मिल्क का इंतजार कर रहे हैं, जो उनके बड़ा होने और मजबूत होने में मदद करता है. प्लीज गेट अप. सो इसीलिए जो मिल्कमैन है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज, कृपया करके, गेट अप, उठ जाओ. ही प्लीडेड, ही इज रिक्वेस्टिंग आल्सो. प्लीड का मतलब विनती करना, अगेन रिक्वेस्टिंग. इट मीन्स द मिल्कमैन इज प्लीडिंग, रिक्वेस्टिंग टू द काउ, प्लीज गेट अप फॉर द मिल्क टू द चिल्ड्रन. बच्चों के मिल्क के लिए तुम उठ जाओ. फिर क्या करता है, ही पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड. थ्री वर्ड है. पुल का मतलब होता है खींचना, पुल्ड का मतलब खींचना. सो विथ द रोप, क्या, जैसे मान लो ये गाय है, तो इसके यहाँ पर रस्सी लगी हुई है, तो मिल्कमैन जो है कि क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, इस रस्सी को पहले खींच रहा है, फिर क्या कर रहा है, टग्ड कर रहा है. इसी रस्सी को झटके से, झटके देना, टग्ड का मतलब झटके देना, या जो है कि बहुत तेजी से खींचना. एंड प्रेड, और रिक्वेस्ट करना. तीन काम उसने किया. क्या किया, पहले रस्सी को तेजी से खींचा, रस्सी को झटका दिया, रोप को, एंड प्रेड, फिर अंत में उसने प्रार्थना किया कि किसी भी तरीके से यह जो काऊ है यह उठ जाए और चले मेरे साथ. सो दैट इज. नाउ नेक्स्ट लाइन. बट द काऊ वाजंट एनीवेयर दैट डे. लेकिन कहता है, लेकिन काऊ क्या करती, वॉज नॉट एनीवेयर दैट डे, वह उस दिन कहीं नहीं जाना चाहती, वह चुपचाप वहीं बैठे रहना चाहती है. बट द काऊ वाजंट एनीवेयर दैट डे, उस दिन गाय कहीं नहीं जाती. नेक्स्ट लाइन. अलोंग केम अ पुलिसमैन. अलोंग
came a policeman, his buttons and buckles gleaming bright. He said, twirling his long mustache, I will show you how to do it right. अब क्या हुआ, एक पुलिसमैन वाला आया, रास्ते से जा रहा था पुलिसमैन, उसने देखा, फिर वो क्या कहता है, he is saying, along came a policeman. उसी समय कौन आया, a policeman, एक पुलिसमैन आया. His buttons, उसके जो शर्ट के बटन्स थे, शर्ट पे बटन होते हैं ना, या उसका जो कहते हैं कि ड्रेस था पुलिस का, उस ड्रेस पे जो बटन्स लगे थे, एंड बक्कल्स, उसके जो बक्कल लगे हुए थे, जो बेल्ट होते हैं उस पे एक बक्कल लगे हुए होते हैं ना पुलिसमैन के, तो उस बटन और बक्कल्स कैसे थे, ग्लीमिंग ब्राइट, वो चमक रहे थे. ग्लीम का मतलब ग्लिटर, DTER. I will send you the difficult word. Glitter माने चमकना. He is gleaming. Buttons, buckles, they are gleaming bright. वो तेजी से चमक रहे थे. एक पुलिसमैन वाला आया जिसके बटन्स, बक्कल्स जो है कि तेजी से चमक रहे थे, ग्लीम कर रहे थे. He said, twirling his long mustache. तो वो कहता है कि क्या, कि रुको मैं आ गया हूँ. He said twirling, अपनी मुस्टैच माने मूछों को क्या करता, ट्विर्ल, घुमाते हुए, इस तरीके से घुमाते हुए कहता है कि I shall show you how to do it right. मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसको सही कैसे करते हैं, यानी इस गाय को कैसे उठाते हैं, कैसे इसको सही करते हैं, या कौन दिखाएगा अब. So that is policeman. अब पुलिसमैन का कहना है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो तुम लोग एक तरफ हो जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम लोग कैसे, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, तुम लोग जो नहीं कर पाए वह मैं कितनी आसानी से कर देता हूँ. अगेन सी दिस पैसेज. Along came a policeman. उसी समय कौन आया, एक पुलिसमैन आया जिसके हिज माने उसका बटन्स एंड बक्कल्स ग्लीमिंग ब्राइट, उसका जो बटन्स था शर्ट के और जो बक्कल्स थे वो चमक रहे थे. He said, twirling his long mustache, I shall show you how to do it right. अपनी मूछों पर ताव देता हुआ, जिसे कहते हैं मूछों को घुमाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसको कैसे सही करते हैं, इस गाय को कैसे सही करते हैं और कैसे उठाते हैं. Now the next stanza. The policeman and the milkman pulled and tugged and prayed, but the cow wasn't going anywhere that day. Same thing happened. फिर से वही हुआ जैसे ऊपर हुआ था. पुलिसमैन आया, and the milkman आया. दोनों ने एक साथ मिल करके क्या किया, पुलिसमैन और मिल्कमैन दोनों एक साथ मिल करके क्या करते हैं, पुल्ड माने खींचते हैं, टग्ड माने रस्सी से जो वही झटके देना, एंड प्रेड उससे प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं. बट द काउ वाजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे. लेकिन गाय उस दिन कहीं जाने के मूड में नहीं है. गाय वहीं बैठे, काउ वहीं बैठे रहने के मूड में है. सो थिंक देयर आर 3 वर्ड, पुल्ड, टग्ड एंड प्रेड. ये एक सीक्वेंस है. पहले क्या किया उन्होंने, खींचे. जब गाय को खींच नहीं पाए रस्सी से तो क्या किए, टग, उस रस्सी से उसे झटका दिए, उसे थोड़ा जो है कि डराने की कोशिश किए कि डर करके ये उठ जाएगी. फिर वो भी नहीं सक्सेस हुआ, तो फिर इसके बाद क्या किए, फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट करने लगे. प्रेड का मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट करना. फिर वो रिक्वेस्ट करने लगे. बट द काउ वाजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे. लेकिन गाय जो है कि उस दिन कहीं जाने के मूड में नहीं थी, उसको कोई असर नहीं हुआ, उससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ा. Now the next stanza. Along came a grocer. ग्रोसर माने, ग्रोसर का मतलब होता है कि वह सेलर जहां से हम डेली नीड्स की चीजें खरीदते हैं. जैसे इफ यू हैव टू बाय ऑयल, यू हैव टू बाय pulses, rice. So this kind of thing who sell, that is grocer. यानी वह जो ऑयल, आटा, चावल, गेहूं, ये सब चीजें
बिस्किट के पैकेट्स, जहां से जिस शॉप से हम खरीद कर लाते हैं उसे ग्रोसर्स कहते हैं, यानी उसे बेचने वाला जो है कि ग्रोसर्स होता है, या सीधे शब्दों में कहें तो किराना का स्टोर या परचून वाला जो है कि ग्रोसर कहा जाता है। सो along came a grocer, उसी के साथ कौन आया? ग्रोसर आया, एक परचून की दुकान वाला आया। ग्रोसर, हमें केवल ग्रोसर ही जानना है। along came a grocer, साथ में कौन आया? उसी समय एक ग्रोसर आया। with bag of potatoes, किसके साथ आया? एक पोटैटो के बैग के साथ। एक बैग था जिसमें पोटैटोज भरे थे, एंड पीस, मटर भरे हुए थे। पीस का मतलब आपको पता ही है, मटर भरे हुए थे। he said I shall move this cow with the greatest of ease, कहता है कि मैं इस गाय को यहाँ से उठा दूंगा, यहाँ से मूव करा दूंगा। और कैसे? ग्रेटेस्ट ऑफ ईज, बहुत ही आसानी के साथ। ईज माने आसान, बहुत ही सरलता के साथ, और बहुत ही ज्यादा सरलता के साथ मैं क्या करूंगा? इसे यहाँ से उठा दूंगा। Along came a grocer, उसी समय एक ग्रोसर आया, और उसने क्या कहा? विथ बैग, हाँ, वो किसके साथ आया? विथ बैग ऑफ पोटैटोज एंड पी, पोटैटो और पीस के एक बैग के साथ ग्रोसर आया। He said, उसने कहा कि I will move this cow with the greatest of ease, मैं इस काऊ को बहुत ही आसानी से यहाँ से मूव करा दूंगा, या यहाँ से इसको उठा दूंगा। Now, last line. The grocer, the policeman and the milkman pulled and tugged and prayed. फिर सेम थिंग हुआ जैसे ऊपर हुआ था। ग्रोसर, पुलिसमैन एंड मिल्कमैन, अब तीनों ने मिलकर के क्या किया? इन तीनों ने मिलकर के पुल्ड किया, खींचा, रस्सी से गाय को खींचने की कोशिश की। फिर इसके बाद किया टग, रस्सी से झटका देकर डराने की कोशिश की। और जब इन दोनों से काम नहीं बन पाया तो क्या किया? प्रेड किया, विनती किया, रिक्वेस्ट किया कि गाय माता अब उठ जाओ, बहुत हो गया। लेकिन फिर भी वही कि गाय कहीं जाने के मूड में नहीं थी। गाय कहीं जाना नहीं चाह रही है, आज वह कहीं मूव नहीं करेगी। सो इन दिस वीडियो this is all, I think. Video is getting long. How minute it is? So one line was remain, I forgot to write this, so I have written here. So in last he is saying, but the cow wasn't going anywhere that day. लेकिन गाय जो है कि but the cow was not going anywhere that day. लेकिन गाय जो है कि उस दिन कहीं जाने के मूड में नहीं थी। Once again we will see this passage. Along came a grocer with bag of potatoes and pea. उसी समय कौन आया? एक ग्रोसर आया, किसके साथ? बैग ऑफ पोटैटोज एंड पी, पोटैटो और पीस के एक बैग के साथ आया। और क्या कहा? He said, उसने कहा कि I will move this cow with greatest of ease, मैं इस गाय को आसानी के साथ, बहुत ही आसानी के साथ क्या करूंगा? मूव करा दूंगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या इसको उठा दूंगा और ये चलने लगेगी। द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन, अब क्या हुआ? अब तीन लोग हो गए, ग्रोसर्स, पुलिसमैन एंड मिल्कमैन। तीनों मिल करके एक साथ क्या करते हैं? काऊ को पुल्ड करते हैं, पहले खींचते हैं रस्सी से, फिर इसके बाद टग करते हैं, रस्सी से उसे झटका देते हैं, डराते हैं। और जब इन दोनों से काम नहीं बनता तो फिर अगेन वो क्या करते हैं कि प्रेड करते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं काऊ से कि गाय माता अब उठ जाओ और अपने रास्ते चली जाओ। लेकिन क्या होता है कि बट द काऊ वाजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे, लेकिन गाय जो है कि कहीं भी जाने के मूड में नहीं है। ओके, that's all in this video. I will send you the difficult word, whatever the difficult word is here. I will send you, write down in your notebook. Okay, watch this video one time, two times, and try to understand the meaning of that passage, that words. Okay, thank you so much for watching this.